Hello everyone, my name is Divyanshu Chaudhary and I have secured All India Rank 30 in UPSC Civil Services Examination 2020. This was my second attempt at UPSC Civil Services Examination. And a brief introduction about myself. I belong to the Jaipur city of Rajasthan. I have done my schooling from St. Anselm's Pink City Senior Secondary School, Jaipur. After that, I did my engineering from BITS Pilani in electrical and electronics engineering from 2011 to 2015. Post that, I went for my MBA to IIM Calcutta in the year 2015 and I graduated from IIM Calcutta in 2017. I worked for a year in HSBC Bank Mumbai after that till 2018. And this was when I decided to leave my job and started preparing for civil services full time. I came to Delhi in June 2018 and this has been a 3-year long journey and thankfully it has come to a nice conclusion. Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmikant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustaba Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. Talking about my motivation for going for civil services, particularly after MBA, was because the factor about job satisfaction and personal level of satisfaction when it comes to serving the lower strata of the society. I had rendered my services in NSS in BITS Pilani and I also had done a project with Teach for India in IIM Calcutta, which basically gave me immense satisfaction when I was able to contribute well to the development of the lower sections of the society. And ultimately, I decided that this was the career I really wanted to follow in my life and hence started preparing for civil services full time after my banking job. Talking about my strategy, there were two key things that I had decided before diving into the civil services preparation. The first one was that I had decided that my optional would be mathematics before coming to Delhi itself. The reason was because maths is a very scoring optional. I also have a lot of interest in mathematics right from my school days. And at the same time, there were a number of topics of mathematics that I had already covered in my engineering and management studies. So maths came as a natural choice to me and thankfully I was able to do well in maths in both my attempts also. And the second thing was that I had decided that I will not go for too many coaching material when it comes to prelims or mains examination, since there is no dearth of it if we talk about the UPSC market. And I decided to stick to the basic resources that are available everywhere on the internet, particularly related to the static part. And my objective was to revise them continuously and develop mastery over them so that at least I am not able to solve any question related to the static part in the prelims or mains examination wrongly. So I think these two were the key factors that really helped me score well both in my prelims and mains examination in both the attempts. Speaking from a very paper point of view, there were two key strategies that I followed when it comes to prelims. In my first prelims examination, I had nearly solved 80 to 100 mock test papers because I was very excited that this is my first examination. And I decided to go for a lot of papers because ultimately prelims is the make or break stage which decides whether you will go further in this examination or not.
पर जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस एग्जामिनेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एलिमिनेशन टेक्निक है, रादर देन गोइंग फॉर अ लॉट नंबर ऑफ मॉक पेपर्स। मेरा जो स्कोर था पहले प्रीलिम्स में वो 110 था, विच वॉज वेल अबव द कट ऑफ, बट आई रियलाइज दैट ये एलिमिनेशन टेक्निक वो है जो अगर मेरे को फ्यूचर अटेम्प्ट्स देने पड़े तो उसमें मुझे और भी ज़्यादा आगे लेके जाएगी। And in my second attempt, this was the major focus, that I solved nearly 40 to 50 mock papers. I restricted my preparation to this number only, but मैंने ये decide किया था कि मैं elimination technique को अच्छे से apply करूँगा, because of which my score increased to nearly 15 marks over and above the 110 that I had scored in my first examination. ऑल्सो प्रीलिम्स के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में स्टैटिक रिसोर्सेज तो आपको अच्छे से करने ही हैं, बट करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। नॉर्मली 40 to 60 का रेशो रहता है, जिसमें 60% ऑफ द पेपर करंट अफेयर्स से आता है। तो करंट अफेयर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन टेक्निक आपको कुछ बेसिक मैगजीन्स और कोचिंग पेपर्स भी सॉल्व करने होंगे। मैंने विजन आईएएस की मैगजीन को रेफ़र किया था बोथ इन माई बोथ अटेम्प्ट्स, एंड उनका जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है एंड PT 365 है, उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। सिमिलरली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वाजीराम, जहाँ मैंने कोचिंग ली थी, उसकी मटेरियल को भी अटेम्प्ट किया था फॉर द करंट अफेयर्स, एंड उसके अलावा इनसाइट्स आईएएस के मटेरियल को भी मैंने काफ़ी रेफ़र किया था इन बोथ माई अटेम्प्ट्स। So broadly this was my strategy for the prelims examination. Coming to the mains examination now, which is the key factor of getting a very good rank in civil services examination. मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी strategy पेपर वाइज बता पाऊँ एंड कहाँ मैंने improve किया particularly from the first attempt. जो 4 पेपर्स होते हैं GS के और SA के, मोस्टली मैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। एसए पेपर मेरा हमेशा से ठीक रहा है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज एक्सपीरियंस में आई वॉज द एडिटर ऑफ बोथ मैगजीन्स, बोथ इन बिट्स पिलानी एंड IIM कैलकटा। तो ऐसे लिखना मेरा बचपन से शौक भी रहा है और मैंने स्टोरीज़ भी लिखी हैं ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम्स। सो इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे 129 मार्क्स थे ऐसे में, एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे 136 मार्क्स मिले हैं। ब्रॉड स्ट्रैटेजी मेरी यही रही थी कि करीब 10 से 15 टॉपिक्स जो काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वो मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मार्क कर लिए थे। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म एक्सेट्रा, और इनके मैंने 1 पेजर्स तैयार कर लिए थे, ताकि अगर इनसे कोई भी टॉपिक आए तो मैं सीधा लिखना चालू कर दूँ बिना कुछ ज़्यादा टाइम डिवोट किए। एट द सेम टाइम ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स और कोट्स भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर एक काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और आपकी कॉपी को बाकी एस्पिरेंट्स की कॉपी से बेटर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस मैंने करी थी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज एन अप्रोच कॉल्ड पेस्टल अप्रोच व्हेन इट कम्स टू एसे, जिसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल ये सब एंगल्स इंक्लूड करते हैं। तो पर्टिकुलरली ये अप्रोच दोनों ही एसेज में एंड पर्टिकुलरली इन द फिलोसॉफिकल एसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर वहीं प्रिपेयर करना होता है एग्जाम हॉल में। तो ये मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी एसे में, एंड दिस टाइम आई हैव बीन एबल टू स्कोर अ फेयरली गुड स्कोर ऑफ 136, विच इज़ क्वाइट अबव एवरेज। लास्ट ईयर भी मेरा स्कोर अच्छा था इन एसे। कमिंग टू दी GS पेपर्स, GS 1, 2, 3, 4 4 पेपर्स होते हैं इस एग्जामिनेशन में। पर्टिकुलरली देखा जाए तो GS1 स्टैटिक पोर्शन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है, तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं जो भी रिसोर्सेज हैं अपने स्टैटिक के वही बार बार रिवाइज करूं, कोचिंग के नोट्स और उसके अलावा जो बुक्स थी जो भी सब एस्पिरेंट्स रेफ़र करते हैं वो मैंने ट्राई किया था कि मैं सॉल्व करूं। तो GS1 वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ। GS 2-3 में भी मैंने ये कोशिश करी थी कि करंट अफेयर्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, बट एट द सेम टाइम जो एक स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो करी वो ये थी कि मैंने हर आंसर को इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखा था, बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स अ क्लियर इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट द पर्सन नोज अबाउट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एंड सिमिलरली आंसर्स को पॉइंट फॉर्मेट में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेट में नॉर्मली कुछ चीज़ें छूट जाती हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनर शायद नहीं देख पाता है। अंडरलाइनिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उससे कीवर्ड्स अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर ब्रॉडली, जिसके पास सिर्फ 1 से 1.5 मिनट है एक आंसर को चेक करने के लिए, वो आपको बेटर मार्क्स देंगे।
And lastly, I think there is a very important need to have diagrams, flow charts, bar graphs, etc. क्योंकि जितना pictorial representation दे पाएंगे उतने आपके words भी कम होंगे और at the same time it will create a very positive impact on the examiner also. So GS 123 में मेरी broadly यही strategy रही थी. GS 4 एक काफ़ी यूनिक पेपर है जो हम एथिक्स का पेपर बोलते हैं. उसमें मैंने ये एक चीज़ इस बार ज़रूर करी थी कि मैंने पर्सनल एग्जाम्पल्स काफ़ी इंक्लूड किए थे जो स्टैटिक पोर्शन आता है उसमें, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि नॉर्मली पेपर काफ़ी डायनामिक हो चला है एथिक्स का, एंड अगर आप रटे रटा एग्जाम्पल्स या कोई बुकिश एग्जाम्पल्स कोट करना चाहेंगे तो उतना शायद इम्पैक्ट नहीं डालेगा. तो मैंने पर्सनल एग्जाम्पल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, उसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव भी हुआ इस बार. एंड जो केस स्टडीज़ वाला पोर्शन है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, क्योंकि उससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी एबिलिटी टू थिंक ऑन द फीट और आपका प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो सब चीज़ें टेस्ट होती हैं. तो उसके लिए मेरे 3-4 दोस्त थे जिनके साथ मैंने एक ग्रुप बनाया था और हम लोग डिस्कस करते थे कि हम लोग कैसे किसी भी केस स्टडी को अप्रोच करेंगे. सिमिलरली जो मैंने मॉक टेस्ट्स लिखे थे मेंस के लिए, उसमें मैंने जो मॉडल आंसर्स थे उनको रेफर किया था, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू डू बेटर इन केस स्टडीज दिस ईयर एज वेल. Talking about a very resource specific preparation, in my first attempt मैंने Vision IAS की मेंस टेस्ट सीरीज दी थी जिसमें मैंने 7 टेस्ट लिखे थे GS के, एंड दिस टाइम मैंने Vision IAS और Forum IAS दोनों की टेस्ट सीरीज लगाई थी एंड आई रोट अराउंड 14 टेस्ट. तो उसकी वजह से मेरा स्कोर इंक्रीज भी हुआ दिस ईयर. सो ब्रॉडली दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू SA एंड GS, एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माई स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स ऑप्शनल इन द नेक्स्ट वीडियो. तो ये मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी रही है टू क्लियर दी UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020. मैं सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. प्लीज़ अपने ऊपर बिलीफ रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए. एंड एक चीज़ जो मैंने काफ़ी देखी है वो ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद इस टनल के एंड पे कोई लाइट ही नहीं है, बट जब मैं इस साइड आ गया हूँ तो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव सीन द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सो थैंक यू.